آج یہ خان بار ہے جس کو پشاور کے برابر 2 کروڑ روپے کا فنڈ دیا گیا. ایک ایک روپے کا حساب مجھ سے میرا کل بھرتی ہونے والا جونیئر بھی مجھ سے مانگ سکتا ہے. ہم سے منافقانہ سیاست ہوتی نہیں ہے. رانا صاحب کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ رانا صاحب ہمارے وزیر وکلا سے بات, ان کو اگر کمپین پہ استعمال کرتے ہیں تو یہ کمپین پہ لیے بھی آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ کے پاس شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. جمہوری عمل کا ایک اور سلسلہ آگے بڑھا. فیصلے ڈرائنگ روموں میں ہونے لگے ہیں. یہ الیکشن صرف کالے کوٹ کا ہوتا ہے اور ہم اس میں فخر بھی کرتے ہیں کہ کل ہماری الحاق کا صدر صاحب ایسے بندے کے ساتھ ہوا. اپنے کونسل نثار خان میرا بھائی ہے. کون کہتا ہے پہلے فنڈ نہیں آئے؟ بار میں فنڈ آتے بھی رہے ہیں, پر کہاں جاتے رہے کسی کو کوئی پتہ نہیں. جو پیسہ میں نے لگایا ہے اپنے ہاتھ سے اس کا حساب بھی دوں گا. رانا صاحب کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. ڈسٹرکٹ بار میں جو کام کا سلسلہ شروع ہے وہ انشاءاللہ جاری ساری رہے. میرا استاد بھی تھا, میرے گائیڈ بھی کرتا تھا. محمد حنیف پیپا سے سیکھا ہے. میں وہ پیپا تو نہیں بن سکتا, مگر اس کے راستوں پہ چل کے کچھ سیکھا ضرور ہے اور کچھ کر رہا ہوں. اور بھائیو, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. یہاں اب وکلا کیا پوری ڈی خان کے عوام کی آنکھیں کھل چکی ہے. جو کام کرے گا وہ دوبارہ آئے گا. کوئی آؤٹ سائڈر یہ نہیں سمجھ سکتا کہ پریکٹسنگ لائر کو کیا مسائل ہے. خرچے کے بارے بھی بات آ جائے تو ہم نفع نقصان کے ساتھ بھی ہم برابر شریک ہیں رانا صاحب کے ساتھ. کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ مجھے کیوں نکالا. عرفان گلی کا 9 مہینے اکاؤنٹ بند رہا, کام نہیں کر سکا. ہدایت اترا صاحب کمیٹی کے ممبر تھے جن کو اس دفعہ انہوں نے بائی پاس کر دیا. اگر میری بات غلط لگے وہ زندہ ہے. ڈسٹرکٹ بار کو رانا ندیم کی ضرورت ہے. اور یہ حشمت کو پورے سال سزا ملی ہے. اس پہ ایلیگیشن لگائے گئے ہیں کہ آپ کو 15 لاکھ روپے دیے گئے, آپ نے ووٹ رانا ندیم کو بیچا. تو بھائی میں نے یہاں افیم بیچنی تھی جو اس کو 15 لاکھ کا ووٹ دوں گا. میں نے یہاں کوئی غیر قانونی اڈے چلانے تھے جو میں یہاں پہ مطلب ہے اس کو 15 لاکھ دوں گا. مگر میں اب پوچھتا ہوں کہ اب کمیٹی نے کون سا کرائٹیریا استعمال کیا یا کون سے الفاظ تھے وہ تو بتائیں. میں نے کہا گلی اور اختر میں کیا فرق ہے, اس سے تو آپ گلی کو بٹھا دیں کمیٹی میں. یہ کہہ دیتے کہ رانا 2 کروڑ لایا ہے, کزار 10 کروڑ لائے گا, اس لیے ہم رانا کو ہٹا رہے ہیں, کزار کو لا رہے ہیں. اصل میں بھی کزار خان گروپ کے ساتھ ہی تھا شروع ہی سے, اور آپ کو کلاس صاحبان کو پتہ تھا. لیکن جب ہم نے وزیرستان لائر ویلفیئر فورم کا ایک وجود رکھا تو ہمارے ساتھ تقریباً 60-62 وہ کلاس صاحبان ہیں. یہ ہم میٹنگ پہ میٹنگ اس لیے کرتے رہے کہ کل کسی کو یہ افسوس نہ ہو کہ یہ تو ہمارے صدر صاحب نے یہ فیصلہ کیا, کہ صدر صاحب نے کہا کہ ہم اسی گروپ کے ساتھ ہی الحاق کرتے ہیں. تو میں نے کوشش یہ کی, ہم سے منافقانہ سیاست ہوتی نہیں ہے, میں نے کوشش یہ کی کہ یہاں پر ریفرینڈم کراتے ہیں, جس کے فیور میں ریفرینڈم میجارٹی زیادہ وکلا صاحبان کے ووٹ نکل آئے اسی گروپ کے ساتھ ہم الحاق کرتے ہیں. تو اسی بارے میں رانا صاحب کے بہت زیادہ ووٹ نکل آئے ہیں. جس طرح ہم نے گنتی کی یعنی 30 اور 5 کا مقابلہ تھا, ان کے بعد جب ہم نے رانا صاحب کا نام دیکھ لیا تو ہمارا ضمیر انتہائی مطمئن ہوا. وہ اس لیے مطمئن ہوا کہ میں نے فیصلہ میجارٹی کی بنیاد پہ کیا. میں نے اپنی کابینٹ یا میں نے اپنے گروپ کی خاطر کسی کو میں نے وہ نہیں کیا, نہ کسی کو میں نے ووٹ کے بارے میں کہا. جب میجارٹی کا فیصلہ تھا تو میجارٹی کا فیصلہ ہر صورت پہ صدر نے بھی قبول کیا اور ہمارے گروپ نے بھی قبول کیا. تو اس لیے میں آج ہی سے رانا صاحب کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ رانا صاحب ہمارے وزیر وکلا صاحبان, ان کو اگر کمپین پہ استعمال کرتے ہیں تو یہ کمپین پہ لیے بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. اگر ان کو جہاں پہ جس وکیل کے پاس لینا جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. آخری الیکشن کے آخری دن تک آپ نے ہاں کرنے, ہم نے جواب دینا, ہر صورت پہ آپ کے ساتھ ہم شانہ بشانہ ہوں گے. ہر صورت پہ رانا صاحب کے ساتھ مکمل تعاونی کریں گے اور مکمل ووٹ اینڈ سپورٹ بھی کریں گے. حتیٰ کہ جو ہم سے اگر خرچے کے بارے بھی بات آ جائے تو ہم نفع نقصان کے ساتھ بھی ہم برابر شریک ہیں رانا صاحب کے ساتھ. آج اس جمہوری عمل کا ایک اور سلسلہ آگے بڑھا.
करीम आप सोसाइटी कहते हैं, जितनी जमहूरियत हमारे वकला बिरादरी में नज़र आती है शायद ही किसी डिपार्टमेंट में कि किसी और यूनियन में या किसी और चीज़ में नज़र आती हो। बदकिस्मती से यहाँ भी कुछ मामला इस किस्म के हो गए हैं कि फ़ैसले ड्राइंग रूमों में होने लगे हैं। सदर साहब ने बड़ी बात अच्छी की कि हमने ये जो फ़ैसला किया अक्सरियती राय पर किया, किसी की ज़ाती पसंद या नापसंद पर नहीं हुआ। तो मैं इनको एक बार फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये फ़ैसला जो आपका आज हुआ है या जिसका आपने आज इजहार किया है, इंशाअल्लाह ताला ये इस डिस्ट्रिक्ट बार और डिस्ट्रिक्ट DA खान डैरसमा खान के हवाले से खुशाइन साबित होगा और ये नज़र आएगा कि डिस्ट्रिक्ट बार में जो काम का सिलसिला शुरू है वो इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा। और ये चीज़ भी नज़र आएगी, मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, व्हाट्सएप में आप में भी देख रहे होंगे, तो बड़ी खुशी होती है कि जब पीछे लिखा हुआ होता है कि खुर्शीद अनवर शहीद बलाक और मैं वहाँ पर खड़ा होकर तस्वीरें बना रहा हूँ और मैं अपने प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो ये भी मुँह बोलता सबूत है कि वो राना साहब ही का बलाक बनाया हुआ है। अगर जब देखते हैं हनीफ बलाक तो वहाँ पर भी राना साहब ही नज़र आ रहे होते हैं, बेशक वो पीछे कोई और होता है या आगे कोई और होता है। तो राना साहब की जो खिदमात है डिस्ट्रिक्ट बार में वो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। और ज़ैनुल आबिदीन साहब ने जैसा फरमाया था कि डिस्ट्रिक्ट बार को राना नदीम की ज़रूरत है और राना नदीम जैसी क़यादत की ज़रूरत है। ये ऐलान इस बार की तारीख को बदलेगा। आज तक जैसे कि मेरे सीनियर ने कहा कि ड्राइंग रूम में बैठे हुए फैसले अब आवाम कबूल नहीं कर रहे। जो भी इस बार में आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पे बार ने एतमाद किया, मैंने बार के एतमाद को बहाल करने के लिए जो भी कुछ किया अपनी पार्टी की कुर्बानी दी। मैंने पार्टी ज्वाइन की, जहाँ वकला का एहसान है मुझ पर तो वहाँ मेरी पार्टी का भी मेरे पे बहुत बड़ा एहसान। मुझे फंड दिया, फंड लगाया। कहीं एक बंदा कह रहा था स्पीच में कि फंड हर बार को मिला है, बिल्कुल मिला है। लक्की बार से पूछो 25 लाख, बन्नू बार से पूछो 25 लाख, टांग बार से पूछो 10 लाख। वाहिद DA खान बार है जिसको पेशावर के बराबर 2 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। ये ऐसे ही नहीं मिला, ये कुर्बानी दी गई है, ये जद्दोजहद की गई है, जब जाके डिस्ट्रिक्ट बार DA खान को 2 करोड़ रुपए का फंड मिला। फंड लाना भी आसान है मगर फंड को लगाना, डिलीवर करना बहुत मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस स्टेज से कहता हूँ कि एक एक रुपए का हिसाब मुझसे मेरा कल भर्ती होने वाला जूनियर भी मुझसे मांग सकता है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। पिछले उद्वार में कैबिनेट का मेंबर होते हुए इनसे ऑडिट मांगता रहा, उसको ऑडिट देने की बजाय उसका 4 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड करा दिया गया। अपोनेंट कौंसल किजार खान मेरा भाई है, तमाम मेरे भाई हैं, तमाम वकला सीनियर मेरे उस्ताद भी हैं, तमाम जूनियर मेरे भाई भी हैं, मेरी बहनें भी इधर हैं। मैं सबका एहतराम करता हूँ। कौन कहता है पहले फंड नहीं आए? बार में फंड आते भी रहे हैं पर कहाँ जाते रहे किसी को कोई पता नहीं। ये राना नदीम आपका एक एक पैसे का हिसाब देने के लिए 1 बजे रात को भी घंटी करोगे तो मैं आके आपको ऑडिट दूंगा। जो पैसा मैंने लगाया है अपने हाथ से उसका हिसाब भी दूंगा, जो पैसा जिसने लगाया उसका वो भी हिसाब दे। यही खिदमत जो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम, मेरा उस्ताद भी था, मेरा गाइड भी करता था, मोहम्मद हनीफ पीपा से सीखा है और उसी के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। अल्लाह मैं वो पीपा तो नहीं बन सकता मगर उसके रास्तों पे चल के कुछ सीखा ज़रूर है और कुछ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट बार का लाइफ टाइम मेंबर बनाया है, मेरी कोशिश है कि आप बार कौंसिल के भी लाइफ टाइम मेंबर हो। आप ये कहते हैं कि बुजुर्गों का फैसला था, बुजुर्गों ने फैसला किया। मेरे लिए तमाम बुजुर्ग काबिल एहतराम हैं, मेरे लिए तमाम जूनियर्स काबिल एहतराम हैं, मेरे लिए तमाम बार के मेंबर लिटिगेंट सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, कमेटी सिर्फ इतना तो बता दे कि क्राइटेरिया क्या था, मिनट्स क्या है आपकी कमेटी के। राणा ने कोई करप्शन किया है, राणा ने कोई माल इधर उधर किया है, या आने वाले वक्तों में राणा से ये मसाइल हो सकते थे, ये वो दूसरा बंदा सॉल्व कर सकता है। तो भाइयों ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ अब वकला क्या पूरी DA खान की आवाम की आंखें खुल चुकी है, जो काम करेगा वो दोबारा आएगा। मैं एक चीज की एक्सप्लेन करता जाऊं, सिर्फ उनका एक यही मुद्दा रह गया है कि कमेटी का फैसला, कमेटी का फैसला। मैं उन मोहतरम बुजुर्गों से ये पूछता हूँ कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि मुझे क्यों निकाला। तब शाह साहब थे, जिंदा हैं, पूछ लेना। उन्होंने कहा कि इरफान गुली का 9 महीने अकाउंट बंद रहा, काम नहीं कर सका, लिहाजा मैं ये चाहूंगा कि आप इरफान गुली को वो करें, कंसीडर करें। ये बिटानी साहब थे, शौकत बिटानी साहब थे कमेटी में। उन्होंने कहा कि मैं भी
अब इशाक की बात को सेकेंड करता हूँ यार, 9 महीने अकाउंट बंद रहा, ये काम नहीं कर सका, डिलीवर नहीं कर सका, लिहाजा इसको दोबारा मौका दिया जाए। उसके बाद हिदायत उत्तरा साहब कमेटी के मेंबर थे जिनको इस दफा इन्होंने बाईपास कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा सदर चाहिए जो जुडिशरी और इंतजामिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। अगर मेरी बात गलत लगे, वो जिंदा हैं, पिछली कमेटी के तमाम मेंबरान हयात हैं, आप पूछ सकते हैं। तो उसने कहा लिहाजा मेरा वोट राना नदीम के हक में। पांचवा और आखिरी वोट जहाँ दो बराबर हो गए थे, हशमत नवाज सदुदई सर, उनके अल्फाज थे यार क्यों नहीं किया काम, सदर भी से जनरल सेक्रेटरी भी, ये जो काम राना ने किया कि इसने अकेले ने किया, सदर था ना तो काम हो गया, तो पहले भी करता। वो हशमत नवाज ने मुझे वो वोट मेरे हक में है, वहाँ 3-2 का मुकाबला, वहाँ से मैं प्रेसिडेंटशिप के लिए, और ये हशमत को पूरे साल सजा मिली है। उस पर एलिगेशन लगाए गए हैं कि आपको 15 लाख रुपए दिए गए, आपने वोट राना नदीम को बेचा। भाई मैंने यहाँ अफीम बेचनी थी जो उसको 15 लाख का वोट कैसे दूंगा, मैंने यहाँ कोई गैर कानूनी अड्डे चलाने थे जो मैं यहाँ पे मतलब है उसको 15 लाख दूंगा। उसकी राय थी, उसने दी है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, उसकी मेहरबानी है। मगर मैं अब पूछता हूँ कि अब कमेटी ने कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल किया या कौन से अल्फाज थे वो तो बताएं। सिर्फ वहाँ इस दफा का मैं बताता हूँ, मैंने अख्तर हुसैन पे इतराज किया, मैंने सरदार हशमत नवाज को कॉल की कि मैंने कहा गुल्ली और अख्तर में क्या फर्क है, इससे तो आप गुल्ली को बिठा दें कमेटी में। मगर जब नेक्स्ट है उन्होंने कहा सोमवार को बात करेंगे। सोमवार को जब आए, इतवार को इनकी खिचड़ी पक चुकी थी, इरफान साहब किजार खान के हक में दस्तबरदार हो चुके थे। तो मैंने फिर अख्तर को कहा, अख्तर भाई पहले मुझे आप पे इतराज़ था कि गुल्ली कैंडिडेट था, मगर मैंने सुना अब गुल्ली बैठ गया है, तो आप बराए मेहरबानी मेरिट को डिस्कस करना। उसने मुझे कहा बिल्कुल ऐसे ही होगा, मेरिट पे डिस्कस करेंगे, ये इंशाल्लाह बेफिक्र हो। मगर वहाँ क्या मेरिट डिस्कस हुआ, हमारे हशमत नवाज साहब गए हैं, उन्होंने कहा गुल्ली बैठ गया, मेरा वोट किजार का। अख्तर हुसैन साहब कहते हैं मेरा वोट किजार का। चौधरी इशफाक साहब कहते हैं मेरा वोट किजार का। हमारे सीनियर मेंबर चौधरी शरीफ साहब को कहते हैं कि बस 3 तो हो गए, आप भी दे और मैं भी देता हूँ, फिर खत्म करें बात को। उसने कहा नहीं, मेरा वोट राना का। ये कह देते हैं कि राना 2 करोड़ लाया है, किजार 10 करोड़ लाएगा, इसलिए हम राना को हटा रहे हैं, किजार को ला रहे हैं। खुदा की कसम मैं खुद 10,000 हो जाता, मैं न लड़ता, बाहर के मफाद के लिए मैं न लड़ता। जितने भी इलेक्शन होते रहे ये किसी पार्टी के नहीं होते, बल्कि लॉयर फोरम है, लेकिन ये इलेक्शन सिर्फ काले कोर्ट का होता है। जितने भी हमारे मसाइल हैं वो सिर्फ प्रैक्टिसिंग लॉयर ही समझ सकते हैं, कोई आउटसाइडर ये नहीं समझ सकता कि प्रैक्टिसिंग लॉयर को क्या मसाइल हैं। तो इसी को मद्देनजर रखें, आज हम हैं, कल आपका नंबर आ रहा है, आप में ही से कोई होगा।